in India. And you can do that in a country like India, because when you're solving a problem, at the very least you're solving that problem for 1 billion people in this country. So it becomes a test bed for innovation. Now, that mindset change has happened, right? And it is progressively happening. From a governmental perspective, I think where the support is required is twofold. One, again in the context of AI, I think the approach that India is taking, I don't know if any of you have had the opportunity to see the recently released India AI guidelines, but I encourage everyone to go through that paper, because it just gives you a very good lens into how India is looking at governing AI going forward. And the approach that India has taken rests on two major principles. There are 7 principles that they have laid out over there. One, it's a do no harm principle, right? Build models in a way that have guardrails baked into it. And second, we will prefer innovation over restraint. Many countries like EU have preferred a very prescriptive approach to AI regulation, and the jury is still out as to what way is the better way. But, we have an expert on that field, so I will not talk much on that. But what I'm trying to say is that I think the government of India is also realizing that for businesses to flourish, we need to eschew this concept of consistent licensing, consistent testing, putting everyone through this procedural loop that the businesses earlier had to go through. I personally feel the other thing that we need to tackle for this country to build very robust technology innovations that can go at a global scale is access to capital. Today, one of the biggest challenges that Indian entrepreneurs find is, accessing domestic capital. There has to be a mechanism through which we are, diversifying that access pool. And also, that access pool is coming on the back of global expansion. Indian entrepreneurs today have been very inward-looking. Sure, it's also because a lot of it is to do with, the scale of the problem to solve in India is so huge in any way that it's going to take time before anyone can start thinking about global expansion. But I think the time is ripe now. When we say it's India's decade, let's realize that. And for that, I think access to good capital is also going to be a core item. So to a very long-winded answer to your question, but 3 principles. 1, we need to be risk takers as a people. 2, consistently work with the government to push on furthering the ease of doing business agenda. And as a people, as industry, one needs to start talking about it more and more, and the government is receptive of that idea. And third, we need to increase access to good capital for Indian entrepreneurs to go global. Thanks a lot, sir. A very detailed and accurate answer. With this, I would like to also, take your opinion, Yogi sir, on a similar topic. Basically, he talked about guardrails, right? And I think you have spoken a lot on guardrails. What are the cognitive guardrails and things like that? Because it seems we are now psychologically dependent on AI. Like, I personally don't write any letter without using AI or LLMs. So yeah, if you can throw some light there. Sure. So आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ. बोर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कहानी सुनाता हूँ.
Everybody up for a story? Say yes or no. Good. So एक राजा था और वो अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था, उसके राज्य में चोरी नहीं होती थी। और एक समय ऐसा आया जब चोरी नहीं होने की वजह से सब लोग बोर होना शुरू हो गए, घर में कोई ताला नहीं लगाता था, किसी को चोरी की कोई परवाह नहीं थी, तो सब लोग मस्त थे। तो राजा ने एक ऐलान किया कि जो आदमी मेरे महल से एक वस्तु चोरी करेगा उसको मैं अपनी राजकुमारी का हाथ स्वयंवर में दे दूंगा। सो होड़ लगी सब लोगों की, बट कोई चोरी कर नहीं सका। उसके राजमहल से रोज एक घसियारा घास काट के ले जाता था, बेचारा छोटा सा घसियारा, और वो घास को कोई देखते थे, वो देखते थे घास के अंदर तो कुछ है नहीं, तो उसे जाने देते थे, और वो निकल जाता था। जब 30 दिन की मियाद पूरी हुई तो उस राजा ने बुलाया सब लोगों को, भाई किसने कोई चोरी की? तो घसियारा सामने आ गया। उसने कहा साहब मैंने आपके राजमहल से 30 व्हील बैरो चोरी किए। व्हील बैरो मतलब वो जो कार्ट जिसमें वो घास लेके जाता था। हुआ ये है हमारे इस संदर्भ में मैं क्या कहना चाहता हूँ, इज दिस दैट वी डिड नॉट रियलाइज, हम लोग यहाँ पे फेसबुक खेलते रहे और वहाँ पे फेसबुक एक 2.7 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज से 17 साल पहले मैं एक लेबोरेटरी में था, मैं माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत था उस वक्त, और आई वाज इन अ लेबोरेटरी एंड वहाँ पे हमने येल से साइंटिस्ट को बुलाया और हमने ये कहा कि हमें ये बताओ मार्केट शेयर को कैसे ग्रो किया जाए। तो उन साइकोलॉजिस्ट साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा मार्केट शेयर की बात छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए माइंड शेयर को कैसे ग्रो किया जाए। तो हमने भाई माइंड शेयर क्या होता है, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो उसने ये कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाए, तो हमने 2 प्रोडक्ट्स बनाए। तो आप लोग ताली बजाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा हमने क्या प्रोडक्ट। एक तो हमने शॉर्ट वीडियो बनाया जो आप खेलते रहते हैं, रोज ये वीडियो खेलते रहते हैं 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक, छोटा छोटा वीडियो शॉर्ट रील्स। कौन कौन खेलता है? वेरी गुड, तो अपने लिए ताली बजाएंगे ना। अच्छा गुड। और दूसरी चीज़ जो हमने बनाई वो हमने इमोजीज बनाए, जो इमोटिकॉन, जो आई लव यू और ये और वो सब हमने बनाए, राइट। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका ताली बजाने से मन हटेगा, और वो इसलिए कि जब हमने शॉर्ट रील्स बनाए उसका एक तरीका था। उसका तरीका ये था कि आदमी की जो सोच होती है वो लीनियर होती है, हम एक लीनियर एक लाइन में सोचते हैं, लेकिन जो शॉर्ट रील्स हैं इसके अंदर कोई लिनियरिटी नहीं है। यहाँ पे एक लड़की है, फिर एक गाड़ी है, फिर एक बंदर आ जाता है, फिर कोई खाने की चीज़ आ जाती है, फिर एक कोई नालायक सा आदमी आ जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ। तो जो ध्यान है, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जिनको कि संयोजित करके रखना चाहिए, ये सारी इंद्रियां हमारी उथल पुथल हो जाती हैं। और अब उनको, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो न्यूरोप्लास्टिक होती है, तो हमको उस परिवेश में ढाल देती है कि किसी भी एक चीज़ को 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखो। इसको न्यूरल स्विचिंग के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, इफ़ यू अंडरस्टैंड न्यूरल स्विचिंग। तो हमारी न्यूरल स्विचिंग जो है वो हर 2 सेकंड में टिक 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 की तरह हो रही है। आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो फ़ोन निकाल लेते हैं, घर में कोई किसी ने याद नहीं किया तो फ़ोन निकाल लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं, फ़ोन निकाल लेते हैं। ये किया आपके साथ में फेसबुक ने, ये जो व्यंग किया फेसबुक ने आप लोगों के साथ में, उसने आपका दिमाग तो अपने अंदर डाल लिया, राइट। और वो 1.75 ट्रिलियन डॉलर का उसका मार्केट कैप है। हम कहते तो हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन कैसे कि 1.7 ट्रिलियन का मार्केट कैप सिर्फ एक फेसबुक का है, और एनवीडिया का मार्केट कैप अगर आप देखें तो वो 5 ट्रिलियन का है। 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप तो हिंदुस्तान का नहीं हुआ। वहाँ यहाँ 130 करोड़ लोग, हम लोग सुबह से शाम तक न जाने क्या देखते रहते हैं, और हमने 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनाया, जिसके लिए हमको ताली बजानी चाहिए। लेकिन वहाँ पे सिर्फ 30,000 लोगों ने 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप बना लिया। तो सबसे पहले, और मैं बड़ा प्रेरित होता हूँ जब मैं प्रधानमंत्री जी की बातें सुनता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जब उन्होंने शुरू किया तो हमें बड़ी लज्जा आई कि अच्छा, हमें अब विश्व को ये बताना पड़ता है कि लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आप लोगों से मैं संबोधित हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने क्या किया, क्या देश बनाया हमने, और क्या हम कर रहे हैं। ये फेसबुक के टिकटॉक से ये हमारा क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। अब बात करते हैं डेटा की। जो डेटा, मैं लोगों से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ और आपसे भी जानना चाहता हूँ, अगर मैं आपको घास दूँ तो क्या आप घास का पनीर बना सकते हैं, हाँ या ना?
बताइए। नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एक गाय की तो जरूरत होती है। तो जो डेटा यहाँ पे हुआ, डेटा का जो उत्पादन होना शुरू हुआ, ये एक घास की तरह था और हम सब लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। और जो अमेरिकन कंपनीज थी वो एक गाय की तरह आई, उस सारे के सारे डेटा को उठाया और उसको एआई में तब्दील करके उसका पनीर बना के हम ही को खिला रहे हैं और हम उसे खरीद रहे हैं। सो बहुत ये निंदनीय है। मैं इस पब्लिक फोरम के माध्यम से आप लोगों के साथ में कहना चाहता हूँ, और मैं अपनी स्वयं की निंदा करते हुए आप सब लोगों को भी सचेत करना चाहता हूँ कि देखिए ये हुआ क्या। आप एक ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, iOS का ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इज़ अ लाइन ऑफ कोड। आप में से यंग बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लव लेटर भी लिखते होंगे किसी को, लेकिन वो तो कोई पढ़ रहा है। आपके प्ले स्टोर जो है, जिसके ऊपर आपके मोबाइल के ऐप्स हैं, जिसके ऊपर आपका बैंकिंग का ऐप है, जहाँ पे आप पासवर्ड यूज़ करते हैं, हमारे पास हिंदुस्तान में अपना प्ले स्टोर नहीं है, हमारे पास में अपना ब्राउज़र नहीं है। और हम लोग बात करते हैं कि हम चांद और सितारे ले आएंगे। गाज़ा पट्टी क्षेत्र का विध्वंस हुआ और इजराइल ने वहाँ बॉम्ब करके उस सारे के सारे देश को तबाह कर दिया। अब किसी को कोई देश तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कोड को ब्रेक करिए और हमारे बैंकिंग सिस्टम को आप हथिया लीजिए, हमारे एयरलाइन सिस्टम को आप हथिया लीजिए और हमसे ये कहिए कि साहब हमने आपका बैंकिंग और एयरलाइन तो हमने बंद कर दिया है क्योंकि अभी हमारे पास है, आप पैसा नहीं लेने जा सकेंगे। और कल को चाइना आकर के हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, बोलेगा कि हम तो आ गए, अब ये देश अब हमारा है, तो हम क्या करेंगे? हमें सोचना चाहिए। तकलीफ ये नहीं है कि हम ये नहीं सोचते हैं, या तो आप लोगों में से भी कुछ लोग चंद सोचते होंगे, लेकिन तकलीफ ये है कि जो हमारा जो सारे का सारा एजुकेशन का जो ढांचा बना हुआ है वो बड़ा स्ट्रेट जैकेटेड सा है। 2 जमात के बच्चे के पास में आप जाइए और कहिए कि एक कविता, एक ड्राइंग बना दो, और हम सब लोगों ने भी बनाई। उसमें एक नदी होती है, 2 पहाड़ होते हैं, 2 पंछी होते हैं और सूरज या तो उग रहा होता है या जा रहा होता है। तो इमेजिनेशन कहाँ है हमारी? सो मैं आप लोगों को यहाँ प्रेरित करने आया हूँ, उकसाने आया हूँ कि अपने टीचर से ये पूछिए कि साहब एआई के ज़माने में हमें ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं जो हमें पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि उन चीज़ों का कोई औचित्य बचा नहीं है। और आप लोग को ये आकर जान कर के और भी तकलीफ होगी कि आप जो भी आज पढ़ रहे हैं उस चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये अभी आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने अभी कहा कि स्टैनफोर्ड के बच्चे छोड़ करके अपनी स्टैनफोर्ड की पढ़ाई यहाँ पे आकर के उन्होंने $1 बिलियन का बिजनेस शुरू किया। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि आप क्या समझते हैं आपकी कंपनी का वैल्यूएशन, तो कह रहे हैं 6 बिलियन। ये पनीरी हमें चाहिए। अगर तो आपके अंदर वो मादा है कि आप अपने प्रोफेसर के सामने खड़े होकर के बात कर सकें, तब तो ठीक है, और पूछ सकें कि साहब ये जो हमें पढ़ाया, वाइस चांसलर के पास जाइए और कहिए साहब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। चाइना में अब डार्क फैक्ट्रीज बन रही हैं, वहाँ 42 गाड़ियाँ 1 घंटे में बनाते हैं और एक भी शॉप फ्लोर वर्कर नहीं है। तो आप लोगों का भविष्य, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूँ, अंधकारमय नहीं है, बहुत उज्जवल है, बशर्ते ये कि आप सवाल करना शुरू करें। आप सिस्टम से पूछें कि हमें ये घिसी पिटी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें वो पढ़ाया जाए जिससे कि हम आगे अग्रसर हो पाए। तो आपके सवाल का मैंने थोड़ा घुमा फिरा करके जवाब दिया, बट मुझे उम्मीद है कि जी नहीं, बहुत ही एक्यूरेट और डिटेल तरीके से आपने आंसर दिया, धन्यवाद उसके लिए। इसी में सर मेरा एक फॉलोअप है आप ही को, योगी जी, कि जब हम इस कॉग्निटिव गार्डरेल की बात करते हो, जैसे आपने बोला कि किस तरीके से वी आर काइंड ऑफ लाइक अ स्लेव with all this tools and technology, हमारे सामने जो बैठे हैं 150 ऐसे युवा है जो कल कभी 1 साल, 5 साल, 10 साल में लीडर्स बनेंगे। तो और ये कहीं ना कहीं इनमें से कुछ व्यक्ति होंगे जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो अभी जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन और स्टार्टअप को लेके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं थोड़ा रखना चाहता हूँ आपके सामने, कि क्या हम कोई डीप टेक स्टार्टअप करें,
क्या हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एआई इम्प्लीमेंटेशन करें? क्या हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि ठीक है लेट्स बिल्ड अ एआई एजेंट, या हम बहुत नैरो डाउन प्रॉब्लम सॉल्व करें एआई के को यूज करके? तो ये फिर क्या हम सांस बिल्डअप करें? क्या हम अपना हमारे जो एआई की इम्प्लीमेंटेशन से जो सर्विसेज बिजनेस को और एफिशिएंट करे? तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो पहले ये प्रश्न आपको योगी जी, बाद में सेम टू यू रचित सर, ओवर टू यू। सो देखिए, तीन चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमी बनती है। एक है सर्विसेज, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है एग्रीकल्चर। करेक्ट। इनोवेशन की इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जेप्टो ने अपना मुकाम हासिल किया सर्विसेज में, कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई एग्रीकल्चर करता है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि हमने कभी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से 15-16 साल पहले श्री नारायण मूर्ति जी मेरे साथ एक पैनल में थे, मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने हिंदुस्तान को संसार के मैप में ला दिया कि हमने आईटी बनाया। क्योंकि मैं अमेरिका बहुत जाता रहता था और अब भी जाता हूँ, तो मैं वहाँ देखता था कि 10 में से 2 ड्राइवर जो वहाँ कैब चलाते हैं वो अमेरिका गए आईटी के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए और वहीं होके रह गए। अब वो टैक्सी चलाते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कुकी कटर है, एक ही कोड को दफ़े दफ़े और ये दफ़े अगर मैं 5 बार और कहूँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और कहेंगे क्या बेहुदा है आदमी। लेकिन आप सोचिए कि वो आदमी, जो प्राणी जो एक डेस्क के ऊपर बैठ के एक ही कोड को दफ़े लिख रहा है, वो कितना अपने दिमाग में विचलित हो जाएगा। इसलिए उसने वो छोड़ दिया और अब वो वहाँ टैक्सी चलाता है। क्यों? 40% एम्प्लॉयज़ माइक्रोसॉफ्ट के हिंदुस्तान से हैं और फेसबुक में भी और सब जगह में भी। क्यों? हमें साइबर कुली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कभी सोचा ही नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आज हिंदुस्तान में तकरीबन जो बिजनेस करता है वो तकरीबन $4 बिलियन का बिजनेस करता है। $4 बिलियन में से $400 मिलियन सिर्फ उनका लीगलाइजेशन का बिजनेस है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, नॉन लाइसेंस प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के नंबर से उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती कि कंप्यूटर का नंबर इस्तेमाल तो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन हमसे नहीं खरीदा हुआ, तो वो आपके पास में आ जाते हैं और $400 मिलियन वो ऐसे रास्ते में उठा करके ले जाते हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ बिल गेट्स साहब की, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं उनसे कहूँ, साहब आप हमेशा हिंदुस्तान आते हैं, हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, यहाँ कहीं आके रहिए, कुछ 1 महीना दिल्ली में आकर के रहिए, तब तो हमें ये सच में विश्वास हो कि आप सच में हमारे हैं। लेकिन वो सब नहीं होता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये जो दिक्कत है प्रोडक्ट की और प्रोडक्टाइजेशन की, और अगेन इट्स अ माइंडसेट इशू, राइट। सो हमें ये इन सब मुद्दों के बारे में और शायद मैं थोड़ा भटक गया। What was your second question that you asked? And basically, what are those areas which these youth should go Yeah. ahead and implement, Correct. build their own ventures, build their own companies? Yeah. So जो एजेंटिक एआई के बारे में देखिए, पहली बात मैं साहब से अभी बात कर रहा था यहाँ चेतन साहब से, डॉक्टर चेतन से, और हमें ये समझ में आया कि हिंदुस्तान में पावर नहीं है। एआई के लिए पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पावर हमारे पास में नहीं है। तो हम, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत, हमें सबसे पहले तथ्यों को सामने रखना होगा। हिंदुस्तान के पास आज कुल मिलाकर के 460 गीगावाट के करीब पावर है, और इतनी पावर चाइना हर 1 साल में तैयार कर लेता है। तो पावर हमारे पास में नहीं है, तो हम इसलिए बड़े एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम लोग नहीं बना सकते हैं, जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो बना सकते हैं। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ है? और हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक्स के जो फाउंडर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व में तकरीबन 10 करोड़ एजेंट्स की, सॉरी 1000 करोड़ एजेंट्स की ज़रूरत है। छोटे छोटे एजेंट्स हम लोग बना सकते हैं, एजेंटिक एआई के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि डेटा, जितना हैवी डेटा का मॉडल आप रखेंगे उतना आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और पावर आपके पास में है नहीं। हम में से कितने लोगों ने सुन रखा है जो गोल्ड रश हुआ अमेरिका में,
नदी से वो लोग सोना निकाल लेते थे, हमने सुना है, करेक्ट, गोल्ड रश। तो आपको जान के हैरत होगी कि जब गोल्ड रश शुरू हुआ तो उस वक्त कुछ लोगों ने तो वहाँ से गोल्ड निकाला, जैसे एनवीडिया ने गोल्ड निकाला, बीआई का हो रहा है प्रचलन, या माइक्रोसॉफ्ट ने गोल्ड निकाल रहा है, या फेसबुक गोल्ड निकाल रहा है। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो हुए जिन्होंने शवल्स और जीन्स बेचे, जिन्होंने बेल्चे और जीन्स बेचे। और लीवाइज, आज भी मैंने लीवाइज पहन रखी है और आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने पहनी होगी। लीवाइज आज तक चलती है। तो हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल से हटना है, गोल्ड डिगिंग नहीं करना है। हमें जो एक चीज़ है वो ये है कि एजेंट बनाना है, और एजेंट बनाने के लिए हमें उत्सुकता की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ का एजेंट बना सकते हैं। क्या मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके घर का एयर कंडीशनर ऑन कर सकता हूँ? ज़रूर, अगर आप एक चिप वहाँ लगा दें और यहाँ से बटन दबाएं तो ऑन हो सकता है। बनाइए ना, अपना एंटरप्राइज मॉडल बनाइए। क्या मैं कोई ऐसा मॉडल बना सकता हूँ जो फर्न्स एंड पेटल्स को डिफीट कर दे? इतने फूल वाले हैं चारों तरफ जो कि फर्न्स एंड पेटल्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। उनके लिए आप जेप्टो की तरीके का एक मॉडल बना दीजिए और कहिए कि भैया हम आपसे लेंगे सिर्फ 100 रुपया, और आपको इसमें डाल देते हैं जो आपके घर के आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस में होंगे, उनको फूल चाहिए तो हम दे देंगे। इस किस्म के छोटे छोटे मॉडल, फ्रूगल इनोवेशन की हमें ज़रूरत है। और मैं आपको इसी के साथ ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि फ्रूगल सोचिए। तो जहाँ तक आप सोचते हैं वैसा, जैसा आप सोचते हैं वैसा सोचना छोड़ दीजिए। ये जो आप टिकटॉक करते रहते हैं, सबसे पहले तो इससे निजात पाइए, तब आपका दिमाग कहीं सही रास्ते के ऊपर आएगा। नहीं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो आपके हाथ में है। और अगर आपके हाथ में सिर्फ फेसबुक और ट्विटर ही है तो हमारा भविष्य हमारा नहीं हुआ, हमारा भविष्य भी उन्हीं लोगों का हो गया जो कि आज 1.7 ट्रिलियन डॉलर की कॉर्पोरेशन। और आपको मालूम है आपका मूल्यांकन क्या है? आप में से हर एक आदमी आज $700 के करीब फेसबुक आपसे अर्जित कर रहा है। कैसे कर रहा है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर की उनकी टोटल वैल्यूएशन है, और 1.7 ट्रिलियन में तकरीबन 2.5 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब 1.7 को 2.5 से करें तो आप 700 पे आ जाते हैं, $700। और $700 के ऊपर अगर हिंदुस्तान की जनसंख्या का 100 करोड़ आदमी उस पर लगा हुआ है तो ये $700 करोड़ जो है ये हमारा देन है फेसबुक को। डेटा आप खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? डेटा खरीदते हैं, फ्री में मिलता है। तो डेटा एक कमोडिटी है, और इस कमोडिटी का इस्तेमाल करके वो घास का पनीर बना के हमें बेच रहे हैं और हम खा रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से अलग हटिए। दिशा, वो कहते हैं दिशा बदलो दशा बदलेगी। तो दिमाग की दिशा को हमको बदलना है। मैं दिशा के प्रोग्राम में आया हूँ, इसलिए आपसे आग्रह है कि अपनी दिमाग की दिशा को बदली करिए तो दशा बदलेगी। जी सर, over to you. For the same thing, what are the opportunities of implementing AI or building a venture in AI? Sure. I think I am in complete agreement with what Professor Yogi has said, that if you look at it, there is, India has always been really good at building the stack above the base level innovation, right? Now, what we did, we became the pharmacy of the world. How did we become that? We created an entire generic medicine industry at a point in time when, the big pharmas across the world were, very exploitative. But we saw an opportunity and we have created a really good industry out of that. Now, I'll just give you a few examples as to how some of the people are actually utilizing agentic AI and are monetizing that. And one of the example comes out of a city like Surat, where, even in the textile sector, a lot of man hours goes into actually identifying defect in textile. So, one person has developed an imaging solution, AI-based imaging solution, through which that defect can be, detected automatically. So it's improved man-hour productivity by about 80%, right? And imagine the scope of that, right? You don't need to limit it to a city like Surat. That can be taken globally, because
everyone who is doing a textiles business needs that. And you can monetize that opportunity, right? Similarly, one of, during my time at WhatsApp, I worked on a very interesting project and I want to share that with you. This is peak COVID, and we were setting up chatbots in partnership with the government of India, including, I don't know if any of you had a chance to interact with MyGov Corona Help Desk, where one could book their vaccination and also get their vaccination certificate. So I worked on that directly with the government of India and built that solution. But one of the solutions that we had worked on was with the Indian Institute of Science, where they created a product called X-Ray Setu. Essentially what it was is that you upload a copy of your X-ray on that WhatsApp channel, and there's an AI system behind that has detected like thousands of images and can tell you, whether the X-ray that has been uploaded, whether that person has COVID or not. And a similar solution was implemented in Brazil, where all you needed to do was, just give your voice recording of your cough. And based on that, it would be able to tell whether you have COVID or not. So the example, what I'm trying to communicate over here is that the scope is endless for you to build your engines of growth on top of, the baseline AI. Today, we have created the large language models. Sure, there is a need for building LLMs which are more attuned to Indic languages, but at the same time, we have not really solved for enterprise right now, and that's where the opportunity lies. There are very few companies that have, like Anthropic is a company which runs Claude. Claude is really solving for the enterprise network. I encourage all of you to see what kind of solutions they are building, and that will give you a very good idea as to what these task-specific models can look like. And that's where the opportunity lies to, get on the AI bandwagon train, whatever you may want to call it. The godfather of AI, Geoffrey Hinton, said, earlier he had put a 50-year horizon for AI to reach a super intelligence level. Now he has brought it down to 5 to 20 years. And that's also sort of like a 50-50 bet that he has made. And I don't know how many of you had a chance to watch the recent interview that Nikhil Kamath did with Elon Musk. He said that in the next decade or 15-20 years, we might be in a post-work society. But what's essential to understand is the people who will excel in that society also are people who are building these task-specific models at this stage in the next 4 or 5 years. So I encourage you to start thinking on those lines. Yeah, thank you, sir. Just want to add there, as what Claude is doing, Claude is making agents for very, very specific tasks. Let's say, let's say I can build out an agent for writing unit tests. I see that there बहुत सारे लोग यहाँ पे computer science background के भी थे. तो यानी कि let's say if you want to write a unit test, like there's an agent for that and things like that. So that's the enterprise scale for it. Identifying a very niche problem, बहुत ही specific problem identify करके उसको एक scale पे solve करना efficiently. Thanks a lot, sir, for that. So with your policy experience at various companies, WhatsApp, Dream11, even this now Zepto, what should India do better? What the government should do better in terms of policy building, so that it also protects it protects the data. It protects the data of the citizen in all these consumer tech companies, and also it's not stopping these companies to scale, because with scale there might be those bottlenecks. So wanted to understand, what can India do better in terms of policy and regulations of a thin line between protecting the consumers' data and also
helping the startups ecosystem scale? So look, I think as a country, we have very poor data security practices, and we must accept that. Forget digital data. Any society that you go to, you're made to enter your name, sometimes your Aadhaar number, your phone number, all your personally identifiable data that is then sold out in the market, right? From that perspective, I think the the digital protection law that has come into place, it's not going to solve for the data that is already out there, right? Let's accept that all of our data is compromised. It's somewhere floating. All your phone numbers are floating in the dark web somewhere, right? And that's why you get all these scam calls every now and then, right? What it is going to do is, prospectively, for the newer generation that is going to come into the technology world, it's going to be more helpful for them, right? So we have a law in place, right? But how that data protection authority comes into play, what kind of exemplary actions they end up taking, is going to determine how we as a country also behave. So I draw an example with banking, for example. RBI is arguably one of the most sophisticated regulators that we have. And that is why there is a great degree of trust that we place in the banking system today. I'm not talking about the NPAs, that's a separate story, but as consumers, there is a great degree of trust we place in the banking system because we know that there is a very effective regulator looking over, who can come down with an iron hand if required. The Data Protection Authority will have to serve a similar role going forward. And I don't think that is going to be a limiting feature for startups, right? The law does not prevent startups from monetizing data. The law prevents startups from doing it in a way where consent is not taken. Doing it in a way where without consent you're exploiting that data further. So my personal take, after having studied the law and been part of the entire process of the legislation of DPDP Act, the Draft Digital Data Protection Act, over the last 5 years, is that it has struck the right balance between being non-prescriptive but also very heavy in terms of the penalties that it attracts. Now it's on to the kind of regulator that we create over there. So that's on the data piece. Sounds good, sounds good. समय बहुत कम है और रचित सर की फ्लाइट है, तो ना चाहते हुए भी ये सेशन को यहीं रोकना पड़ेगा। ऑडियंस से हम 2-3 प्रश्न ले सकते हैं। आप कृपया हाथ ऊंचा करिए। Hello. Yeah. So my question is that I am an service-based agency owner, software agency owner. So traditionally, अभी तक हमारा जो business model है, it relies on building hours, billable hours for foreign IPs, right? So what is the first practical step that I can take for my company, right, where I am building some kind of micro AI-based innovative IPs for my particular company, so that I can serve these clients as well as hold accountability of the basic software layer.
So what is the first practical step that I can make a way into my company? Yeah. Do you want? Yeah. So I just wanted to understand your business model a little better. Could you explain it again? Yeah, So be precise. yeah, so we build softwares for foreign startups, right? We so हमारा business model है ना, हम billable hours पे generally charge करते हैं, right? So Okay. they have the IP, we give them service engineers, right? We develop the software for them, right? So IP उनके पास है, वो हमें पैसे दे देते हैं, and then the story ends there, right? Right. But with commercialization of code, right? सब लोग अब code कर पा रहे हैं, right? So how can I as a service owner, राइट हम लोग कैसे AI बेस्ड सर्विस से ज़्यादा अपनी कंपनी को बना सके, राइट? कि अब राइट्स तो उनके पास है, बट वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग मनी, हम लोग सिर्फ उनको एक बार कोड करके दे देते हैं. सो हाउ कैन वी कीप मैं एक लफ्ज में एक सेंटेंस में आपकी बात खत्म कर देता हूँ. इफ आई मे टेक दैट, आपको एजेंट बनाने चाहिए, बिकॉज आपका जो भी धंधा आप कर रहे हैं वो सारा रेपिटेटिव है, और आप उस रेपिटेटिव धंधे को आप ट्रेन करिए, मॉडल बनाइए, एक छोटा सा एजेंट बना दीजिए. उसमें आपको डाउनसाइज करना पड़ेगा, उसमें आपका रेवेन्यू का भी बचत होएगा और आपका क्लाइंट का भी सेटिस्फैक्शन होएगा. और बल्कि आप अपने क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेकर के बनाइए कि साहब हम अभी एजेंट बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी हमारी सहायता करें. उन्हें खुशी होगी, क्योंकि वो भी अपना उनका जो बिलेबल आवर्स है वो भी उनका भी रेवेन्यू का बचत होगा जो आउटगो है, और आपका भी रेवेन्यू में ज़्यादा आएगा. एजेंट्स बनाइए. नेक्स्ट. नमस्कार सर, मेरा नाम शाह ऋतु है. आई वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स यू हैव गॉन थ्रू वाइल मेकिंग जेप्टो कंपनी, क्योंकि बहुत सारी ई कॉमर्स थी, जैसे कि स्विगी था, जोमेटो था. व्हाट थिंग्स यू हैव बीन गॉन थ्रू, कि आपने क्या चीज़ अलग करी उन दोनों कंपनी से, जो आप लोग ऑल्सो वन ऑफ दोज कंपनीज बन गए. आई थिंक सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैंने नहीं बनाया Zepto, बट I know the story, so I can tell you a little bit about that. I think the two things that really worked for Zepto is one, supply chain excellence, right? We have been very, very ruthless in terms of bringing consistent degree of efficiency on our supply chain. What do I mean by that? So today on Zepto is arguably the largest retailer of fruits and vegetables in the country today, where it's selling about 1,800 metric tons a day. But the model of procurement is such that from the time it is collected from a collection center to the time it reaches the end user, that time period does not stretch beyond 6 to 8 hours, right? So building that degree of supply chain excellence has been a very key factor in us maintaining a competitive edge. Look, I'm not saying that we have won. The fight is very much on right now. It's playing out right before your eyes, right? So, but I think in the markets that we have done well, a lot of it is in terms of, the kind of supply chain excellence and the automation that we have brought into the system. The second thing that has worked really well is, the marketing strategies that we have applied for customer acquisition, right? So we have not done your traditional ATL, BTL marketing, right? What we have done is more experiential marketing. We have a brilliant chief marketing officer who comes up with very atrangi ideas. One thing that he did to build brand love, a lot of you are Gen Zs in this crowd. And I just found out recently that there is a Gen Z trend of attending fake shadis. Yeah. Right? So we created, these fake shadis, and there's a lot of, Zepto related brand stuff that was part of that fake shadi.
instantly creates a bond between you and the brand. These kind of events where it's becoming a part of your memory that, oh, you attended a fake shadi organized by Zepto, right? For many people it was an experiential thing, right? So in this world, especially in the e-commerce economy, consumer stickiness is very important, and brand loyalty is very weak, right? So you have to consistently find these innovative mechanisms through which you build brand loyalty, because everyone is going to do your run-of-the-mill things like, giving discounts on this. Those are, things that everyone is going to do. What you're doing, which is going to be more creative, but also is going to make you more efficient in reducing your cost, is ultimately going to determine your victory. I would also like to Yeah, ask one more unfortunately, yeah. Okay, please, very quick question. हाँ सर, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अगर हमें एंटर करना हो तो व्हाट थिंग्स वी शुड पॉइंट आर एक्चुअल गोल कि क्या चीज़ें रखनी चाहिए टू कम्पीट दैट कॉम्पिटिशन. जैसे ई कॉमर्स में स्विगी जोमेटो एंड जेप्टो एंटर्ड एंड ऑल्सो बिकम द वन ऑफ द ई कॉमर्स जिसे अभी भी लीडिंग पे है. तो वैसे ऐसे अगर कोई कंपटीशन हो तो हमें कैसे कम्पीट करने के लिए कौन सी चीज़ें अपने मन में रखनी चाहिए वाइल एंटरिंग? सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि अगर वो मार्केट सैचुरेटेड है कि नहीं है. If it's a saturated market, do not enter that market, right? It's going to be a very long battle that you're going to fight, right? Quick commerce is heating up right now, right? The food delivery market, for example, is saturated completely, right? It is a duopoly, we all know it. Uber Eats tried to get into that market, Food Panda tried to get into that market, they did not succeed, right? So you have to keep an eye out where there is a real problem for the user to be solved, and how big is the pie, right? Is the pie big enough to accommodate 3 players, 4 players, 5 players? What is the market size? When you enter into a business, you do a market sizing, right? How big is like the e-commerce market in India? How many $1 billion? Of that, if you are able to capture even like 1 or 2% of that market, what Meesho set out to do, and it went beyond that. Even though a lot of people thought that, what is Meesho even trying to do? It's just trying to build like a Temu in India, right? But you got to study that very deeply, that what is my total addressable market, and am I comfortable with the fact that even if I reach like a certain percentage of that addressable market, I'm okay to go with that, right? So these are just some things. I mean, there's a long laundry list, but these are just some principles to go by. Thank you so much, sir. Yeah, unfortunately, due to the time sensitivity, we'll need to end this session here. I will humbly request Chetan sir to address the closing remarks along with the vote of thanks. Yeah, sir, if you can head to the podium, that will be okay. Yeah. Yeah, it will be great. Okay. So, guys, today we had बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा रहा आज. काफ़ी इंसाइट्स हमें मिले. ओवरऑल जो है, जैसे कोचर साहब ने कहा कि हमारे में कैपेबिलिटी है, बट हमने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, इंडियंस ने कुछ भी मतलब यूएस के बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइज बनाई. देन हम लोग यहाँ पे इंडिया में वो क्यों नहीं कर पाए? वी हैव डन फॉर अदर कंट्री, अदर इकोनॉमी, और उनको इतना बड़ा बनाया, और इतना बड़ा बनाया कि जो आज इंडिया का टोटल इकोनॉमी साइज है उससे भी काफ़ी बड़ा. सो बेसिकली एक चीज़ जो वहाँ पे एक मैसेज है जो मैं आपसे कहूँगा, और दूसरी जो रचित ने कहे कि भाई ई कॉमर्स की जो बात किया आज, ई कॉमर्स के, बिकॉज जेप्टो इज समथिंग विच दे हैव डन वंडर्स. तो वो क्या है बेसिकली? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ई कॉमर्स में आपको चाहिए रिलायबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी. दैट इज समथिंग वेयर इफ यू फोकस, जो इनकी बात है कि आपके पास ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट है
वो रिलायबल है, अब जो सर्विसेज दे रहे हो वो रिलायबल है, कंसिस्टेंटली डिटोरेट नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वेयर आप इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ जानने को मिलेगी कि कौन कंसिस्टेंट है, कौन रिलायबल है. एंड सो इफ़ यू आर thinking about creating an e-commerce platform or a company running on e-commerce, I think this is something which is the most important. So अभी दूसरा जो एक पॉइंट है जो मैं क्विकली अभी मैं इसको समअप करूँगा कि आज का हमारा जो थीम है आत्मनिर्भर. सो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? हाउ डू वी वांट टू अचीव दिस आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर ये चीज़ है कि आप दरवाज़ा बंद कर दो, सारे अपनी बाउंड्रीज बंद कर दो और सिर्फ अपने लिए सब चीज़ करो, बाय अवर सेल्फ, फॉर अस. ऐसे आत्मनिर्भरता नहीं आती है. वी आर इन अ ग्लोबल विलेज. हम लोग ग्लोबलाइज एक ऐसे माहौल में है जहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी, मतलब क्रॉस कंट्री रिलेशनशिप, कॉन्टिनेंटल इंटर कॉन्टिनेंट रिलेशनशिप, वहाँ से नो हाउ ट्रांसफ़र, नॉलेज ट्रांसफ़र, ये सब होता है. लेकिन एक चीज़, मैं एक्चुअली पर्सनली मैं चाइना का बहुत, आई एम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ चाइना एंड फैन ऑफ चाइना. 82 तक किसी ने ये कंट्री के बारे में सुना नहीं था. 1982 कंट्री में एक डिसाइड किया, इफ़ यू वांट टू सेल इन चाइना यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन चाइना. दैट वाज द वन स्लोगन. और पूरा ग्लोबल मार्केट चला गया, वहाँ पे सब लोग चले गए, अमेरिकन चले गए, यूरोपियन चले गए, जापानीज चले गए, जिनके पास जो टेक्नोलॉजी था वो लेके चले गए कि इतना बड़ा मार्केट है, लेट्स गो देयर एंड मैन्युफैक्चर देम. ओवर अ पीरियड ऑफ दे हैव लर्न, सब कुछ सीख लिया उन्होंने, और फिर पूरी दुनिया को उनको ही, जो उनको सिखा गया उनको ही सप्लाई करना शुरू किया. आत्मनिर्भरता वहाँ पे आई. बेसिकली हमारी जो थॉट प्रोसेस है आत्मनिर्भरता की, स्वदेशी हम लोग कभी कभी ले लेते हैं, बट इट शुड बी ग्लोबलाइज. हम जो भी एक्शन लेते हैं, हमें आईटी में जाना है, हमें एआई बनाना है, हमारी थॉट प्रोसेस में सबसे एक चीज पहले आनी चाहिए कि इससे मेरे कंट्री को क्या फायदा होगा. हम करते हैं काम, इतना फायदा कोई और ले जाता है. अभी तो सीखिए, लेट्स लर्न फ्रॉम दिस creations. We have done wonderful creation but benefited for somebody else, some other country, some other entrepreneurs. चाइनीज यही सोचता है, मैं जो भी करूंगा, कोई ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए भी करूंगा, लेकिन मेरे कंट्री को क्या फायदा है. सो दैट इज हाउ वी शुड थिंक. और ये जनरेशन का, अभी कुछ दिन पहले वो हमारे जो आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले साहब आए थे इधर सूरत में, तो मैंने इनसे यही बात कहा था कि अब जो कंट्री फर्स्ट की जो बात हो रही है, वाई अभी तक हम लोग अपने करिकुलम में अभी हम लोग क्यों मोहम्मद तगलक सीख रहे हैं, मोहम्मद गजनवी अभी भी क्यों सीख रहे हैं. वाई वी कांट टॉक अबाउट कंट्री फर्स्ट, और इसके लिए गाइडेंस दे हमारे लोगों को. लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड जो कि इंडियन वे में सोचता है. वी हैव टॉट अ लॉट, जीरो हमने बनाया, तो क्यों हम लोग सभी पूरे विश्व को हम लोग इंडियन वे में सोचने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर सकते हैं? इतने बड़े पॉपुलेशन, इतने बड़े टैलेंट के साथ में, वहाँ से आत्मनिर्भरता आती है. सो वॉट एवर दैट एआई टेक्नोलॉजी कैन लीड अस इन टू अचीव दिस. बाकी सारी चीज़ें बाकी फॉलो करेंगे, बट एआई एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमारा अप्रोच ये रखेंगे. आज हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है, जो ऑटोमेशन है, जो पेमेंट सिस्टम है, आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट देयर इन द वर्ल्ड. मैं यूएस में काम करता हूँ, आई मीन कैन यू थिंक कि 5 रुपया भी आपको पेमेंट करना है, खटाक से आपको पेमेंट कर सकते हो. यू कांट थिंक इन यूएस. सो आई थिंक वी हैव अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग अवेलेबल विथ अस. लेट्स ऑफर इट टू द वर्ल्ड rather than we keep it for ourselves. This is what the Atmanirbharta. Thank you very much. And thank you Yogi and Rachi for the wonderful insight on this. Thank you, sir. I would like to thank both the speakers, Shri Yogesh Kochar ji and Shri Rachit Ranjan ji, for their valuable insight and time. Chairperson Chetan Shah ji, moderator Harnish Rajput ji, and my wonderful audience for listening with zeal and patience. I would also request the guests to head downstairs for a group photo session. Thank you, sir.